Hello students, my name is Dr. Gohar and in this video I will teach you chapter number 1 of second year biology. The name of the chapter is homeostasis. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी आज मैं टॉपिक कवर करूंगी, अगर आप लोगों को उस टॉपिक में कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Feel free to ask anything related to this topic. Yes. So, homeostasis. Basically, homeostasis is a combination of two words, homeo and stasis. Homeo means same or constant. Stasis means state. To stay the same. Okay. Homeostasis is a set of regulatory mechanism which tries to maintain the internal environment of the body within constant limits. बेसिकली बॉडी चाहती है कि उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहे. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हों, इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का जो है वो कांस्टेंट रहे, विद इन नॉर्मल रेंज में रहे, टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में रहे, बॉडी का वाटर सॉल्ट का कंटेंट, ये सब चीज़ें नॉर्मल रेंज में रहे. तो उस चीज़ को जो मेंटेन कर रहा होता है मैकेनिज्म, जो चला रहा होता है ये मैकेनिज्म कि वाटर कंटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर, वो मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस है जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म. Each organism of a species has assumed in evolutionary history a specific setup of internal environment at various levels of organization suitable to its surroundings, which is external environment. External environment and its components fluctuate continuously. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा वो हमेशा फ्लक्चुएट हो रहा होता है. However, the organisms resist and manages these changes by making adjustments to keep its own internal fluctuations within a narrow range, thus protecting internal environment from the harms of the fluctuation. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बॉडी को की जो सारी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो नॉर्मल रेंज में रहता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एनी हार्म्स और फ्लक्चुएशंस से. The protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment is termed as homeostasis. वही जो internal environment अपने आप को protect कर रहा होता है from the harms of the fluctuations in external environment, जो fluctuations हो रही हैं external environment में जिससे हमें internal environment को harm हो सकता है, उस चीज़ को, उस protection को homeostasis कहते हैं. The homeostasis keeps the internal fluctuations in a narrow range with various control systems compared to wider external fluctuations. Most suitable components of internal environment that may be affected by fluctuations in the external environments are water, solutes and temperature. जो external environment में fluctuations होती हैं, उनसे कौन सी चीज़ें हैं जो internal environment की fluctuate हो सकती हैं. वाटर है आता है उसमें, सॉल्यूट्स आते हैं उसमें और टेम्परेचर आता है. ओके. Also, the mechanism an organism has adapted to eliminate harmful nitrogenous waste depend upon the availability of water. और जो organism excretory product nitrogenous waste को जब excrete करता है अपनी बॉडी से, तो उसको रिक्वायर होता है कुछ अमाउंट वाटर का. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनियस वेस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे. कुछ ऑर्गेनाइजम्स एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ ऑर्गेनाइजम्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, कुछ ऑर्गेनाइजम्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिया. और इन तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, इन तीनों नाइट्रोजनियस वेस्ट को सम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर देयर एलिमिनेशन. तो बॉडी में वाटर का की कंसंट्रेशन मेंटेन होनी चाहिए. द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन एन इंटरनल एनवायरनमेंट.
The mechanism which eliminates nitrogenous waste is referred as excretion. The process of removal of nitrogenous waste, excretory product from the body is called excretion, जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड आते हैं. वेयर एज एक्सक्रीशन फीसिस की भी है और यूरिन की भी होती है. वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डिजाइंड एज होम्योस्टेसिस. द मेंटेनेंस ऑफ internal temperature of the body within normal range is called thermoregulation. बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, नॉर्मल रेंज में रखना, उसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं. Likewise, the control systems among intracellular and extracellular environment of an organism also at cell level keep fluctuating in a narrow range in intracellular within cell membrane compared to extracellular, vascular or other interstitial fluids environment. Here, in addition to solute and water, various essential metabolites, hormones, etc. are kept in a required range. So, इस पैराग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे बहुत अच्छा समझ आ जाएगा. This basically there are two types of compartment: intracellular compartment and extracellular compartment. जो सेल के अंदर का कंपार्टमेंट है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट होता है. ये सेल है और सेल के अंदर का कंपार्टमेंट ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है. इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. जो सेल के बाहर का कंपार्टमेंट है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. बट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो डिवाइड हुआ है दो में. एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये जो सेल के बाहर जो फ्लूइड है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. और एक फ्लूइड है वेसल्स के अंदर, प्लाज्मा. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level keep fluctuating. जो intracellular environment होता है और intracellular environment और extracellular environment भी हमेशा चेंज होता रहता है. उसके अंदर फ्लूइड का लेवल, कभी वाटर का लेवल यहाँ ज़्यादा होता है, कभी एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा होगा वाटर का लेवल. तो ये चीज़ है. होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. होम्योस्टेसिस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स्ड रखना. इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रेंज में रखना. टेम्परेचर की जो नॉर्मल रेंज है बॉडी में वही नॉर्मल रेंज रहे. जो वाटर का कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज है बॉडी के अंदर वही नॉर्मल रेंज रहे. सॉल्यूट्स की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होनी चाहिए बॉडी में वही रहे. फिक्स्ड भी नहीं है और चेंज भी ना हो. As changes maintained within a specific range are necessary for normal body functions. For example, water availability may fluctuate tremendously for the organisms in the external environment from abundant supply to almost dry conditions. However, the quantity of water in the body, which is external environment, may vary in response to abundant supply and dry conditions, but in a narrow range. The control systems would not let the body flooded with water. कंट्रोल सिस्टम जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि बॉडी जो है वो भर जाए पानी से. विद अबंडेंट सप्लाई एंड ऑल्सो डू नॉट डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशंस. हमारा होम्योस्टेटिक सिस्टम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि बॉडी के अंदर वाटर जो है वो फ्लडेड हो जाए या ड्राई कंडीशंस में हम लोग डिहाइड्रेट हो जाए, बॉडी की कमी हो जाए. बिल्कुल होम्योस्टेटिक का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर जो वाटर की नॉर्मल रेंज है उसमें बॉडी के अंदर वाटर रहे. Furthermore, adaptation to lower level of range in dry conditions and to higher level of range in abundant supply of water is good for the organisms to feel normal within internal fluctuations forced by drastic external fluctuations. The control systems have been acquired for the variety of homeostatic regulations. These living control systems work exactly on the mechanism of physical control system. It has three components: receptor, control center and an effector. जब भी कोई भी चेंज आता है बॉडी के अंदर तो उस चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं उस चेंज को. वो स्टिमुलस जो होता है, जो चेंज होता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं. और वो जब स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करते हैं? रिसेप्टर्स. वो रिसेप्टर्स उस चेंज को
उस सिग्नल्स को लेके जाते हैं किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन। और वो कंट्रोल सेंटर जो है फिर आउटपुट सिग्नल्स देता है किसको, इफेक्टर को। और फिर इफेक्टर काम करता है कि बॉडी में क्या चीज होनी चाहिए, वो जो चेंज आया है उसको वापस सही करने के लिए। तो ये रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर का मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम दिखाऊंगी। इससे पहले मैं ये, इन अ physical control system, example temperature control system, there is a sensor, thermometer that monitors temperature change from a set point and signals to control center to take action by switching on heater or cooling units in response to drop or rise in temperature compared to set point. फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया हमारे पास, उसके बॉडी का टेम्परेचर हमें नहीं पता, वो बहुत मतलब ऐसी कंडीशन में आ रहा है जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा, वो बहुत फटीग है और बहुत ज़्यादा हमें हॉट लग रहा है वो। हमने जब उसको पैल्पेट करके देखा तो हमने उसको थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर चेक करते हैं उससे हमने उसे चेक किया। जब टेम्परेचर थर्मामीटर से हमने उसे चेक किया तो उसका टेम्परेचर सेट पॉइंट से अबव आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था उसका टेम्परेचर। तो हमने क्या देखा कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है सेट पॉइंट से। अब होता क्या है, नॉर्मली जब टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ता है तो बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन उस पेशेंट को हमने देखा और उसका बॉडी टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट है। वो सिग्नल्स रिसीव करे रिसेप्टर्स ने कि उसका टेम्परेचर अबव देन नॉर्मल है, और उसने वो सिग्नल सेंड किए कंट्रोल सेंटर के पास, ब्रेन के पास। वार्मिंग सिग्नल्स थे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कंट्रोल सेंटर के पास जब सिग्नल्स आए तो उसने इफेक्टर सेल्स को सिग्नल दिए, और इफेक्टर सेल्स ने क्या किया कि ब्लड वेसल्स डायलेट करवाई, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई तो बॉडी से हीट बाहर निकली। स्किन की जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हुई और बॉडी से हीट बाहर निकली। ये ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि डायलेट हो जाएंगी और हीट बाहर निकलेगी। फ्लो बढ़ जाएगा स्किन की तरफ, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा स्किन की तरफ तो हीट भी बाहर निकलेगी। पर्सन ने स्वेटिंग करी, स्वेटिंग मैकेनिज्म बढ़ गया, ये स्वेट ग्लैंड्स ये रहे। जब स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेटिंग का मैकेनिज्म बढ़ गया, स्वेटिंग होगी तो उससे भी हीट लॉस हो जाएगी। और मेटाबॉलिक रेट जो है, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा और उससे हीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या आएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से। उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएगा। ये मैकेनिज्म होता है। नाउ similar to it in living system, there is a temperature set point in temperature regulated endothermic animals. The receptors sensor detect temperature change, जो मैं बता चुकी हूँ, which is example of increase and signal to control center, brain के पास सिग्नल गए for action of cooling system के कूलिंग करवाएं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, and the vice versa। और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो vice versa होगा, हीट प्रोडक्शन और हीट कंजर्वेटिंग मैकेनिज्म बढ़ जाएगा। Detection of change and signaling for effective response to control system is a feedback mechanism। और इस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू ये सब कुछ हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा था और हमने कम करा जाकर, इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बढ़ा हुआ था और उससे हमने कम किया तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि जो चीज था उससे ऑपोजिट रिजल्ट आया है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ है। ठीक है। In these process, there is an inverse effector's response to the change in external environment, as there is generally cooling effector's response to warmth sensing in external environment, thus are termed as negative feedback. Okay. Now, osmoregulation. Water is the solvent of solutes in a cell. As we have already know this thing, water is a universal solvent. Solvent is a compound that has the capacity to dissolve solutes in it, and solute that has a capability to dissolve in the solvent. Each cell has been adapted to define quantity of water in relation to salts in it to perform its functions. Homeostatic mechanisms generally maintain this concentration. Okay.
Balance of water and solutes in the body. Cells consistently encounter changing extracellular environment. It may be of diluted solution compared to cell concentration, thus designated as hypotonic environment. The more concentrated external environment is termed as hypertonic, and that resembles to internal solution is the isotonic. अब मैं आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का बहुत इजी तरीका है याद करने का, इसको वो बताती हूँ। और वो इजी तरीका है इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा हो और वाटर कम हो, सॉल्वेंट कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख रहे हैं जो ब्लू पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब वाटर है, और जो रेड है ये सॉल्यूट या सॉल्यूट है, ये ठीक है, NaCl सॉल्यूट है ये। तो और ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब कैसे, और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे इसको? अ सॉल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखें यहाँ पे सॉल्वेंट कम है ब्लू और सॉल्यूट ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये। अब हाइपोटोनिक पे आते हैं। अ सॉल्यूशन दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर पार्टिकल ज्यादा है, एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Then number third is isotonic solution, a solution that has a solute and solvent concentration equal to other solution. जितने सॉल्यूट यहाँ पर है और सॉल्वेंट यहाँ पर है, उतने ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेल के अंदर भी है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार इस डायग्राम को देखें, पॉज करें, देखें कि क्या समझाना चाह रहा है ये डायग्राम आपको। तो अब अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, अगर मैंने किसी सेल को, ये सेल है, और मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, जैसे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। एक चीज हमेशा याद रखें कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाटर कम है, तो सेल के अंदर क्या है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, बाहर की तरफ मूव कर रहा है, बाहर की तरफ वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। और जब वाटर बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, प्लाज्मो, एनिमल सेल जो हो वो श्रिंक हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस होगी। उसके बाद हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हमने किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ऐसा सॉल्यूशन, ये सेल है और इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है जिसमें वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूट कम है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन, तो वाटर अंदर की तरफ आएगा। नेट वाटर मूवमेंट कहाँ है, अंदर की तरफ है। और जब वाटर मूव करेगा अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ जाएगा, तो क्या होगी, साइटोलाइसिस, सेल टर्जिट हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, बलून लाइक हो जाएगा सेल, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बिल्कुल सेल के अंदर जितनी है, तो कुछ कभी सॉल्यूट वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, कभी सॉल्यूट जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, तो नेट मूवमेंट जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जगह पे बराबर है, आउटसाइड द सेल and inside the cell the concentration of solute and solvent are equal, therefore net movement is zero. Awesome. ओके, एक और डायग्राम है इसको समझाने के लिए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल को रखा हाइपोटोनिक में और प्लांट सेल को रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एनिमल सेल को जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, वाटर नेट मूवमेंट क्या होगी, वाटर के अंदर की तरफ मूवमेंट होगी। हाइपोटोनिक मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, तो वाटर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। और जब बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, एनिमल सेल उस पानी को अपने पास रिटेन नहीं कर पाएगा इतना, तो सेल लाइसिस हो जाएगी। प्लांट सेल के अंदर जब वाटर ज्यादा आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बाहर सेल के जिसमें सॉल्वेंट कम होता है एज कंपेयर टू
इनसाइड सॉल्यूशन। तो नेट मूवमेंट जो वाटर की होगी वो बाहर की तरफ वाटर मूव करेगा, नेट मूवमेंट बाहर होगी, तो एनिमल सेल श्रिंक करेगा। जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड करेगा, वाटर बाहर मूव करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मा। और सेल वॉल है ये, सेल वॉल की वजह से जो है एनिमल प्लांट सेल जो है यहाँ पर ये बर्स्ट नहीं होता, उसको जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को, तो देयर इज नो नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट नहीं है, कभी वाटर बाहर मूव करता है एंड कभी जो है वाटर वो अंदर की तरफ मूव करेगा, कभी बाहर कभी अंदर की तरफ, तो नेट मूवमेंट इज जीरो। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा गया, वो टर्जिड हो गया, स्वेलअप हो गया। हाइपरटोनिक में रखा गया तो सेल जो है वो क्या हो गया, बाहर, नेट मूवमेंट वाटर की बाहर की तरफ हुई तो वो श्रिंक हो गया। और जब नॉर्मल सेल, जब आइसोटोनिक में रखा गया तो नेट मूवमेंट जीरो है, तो सेल का साइज जैसा था, जितना था उतना ही रहा। ओके, द हाइपोटोनिक environment osmotically causes entry of water. Hypotonic environment osmotically causes entry of water into the cell, renders the cell solutions diluted, और cell solution dilute हो जाएगा। The cell has become turgid, also becomes turgid. Thus, it may be harmed. The hypertonic environment, on the other hand, renders cell solutions concentrated. Cell का solution concentrate हो जाएगा क्योंकि net movement बाहर की तरफ है water की, and shrinks the cell due to loss of water. To prevent these situations, cells osmoregulate themselves to keep water and salts balance in plants and animals. So guys, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इस टॉपिक में से समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज के आंसर ज़रूर दूंगी और चाहूँगी कि आप लोगों को समझ आएँ चीज़ें, क्योंकि ये होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो गाइडलाइन नहीं मिलती, वो क्योंकि उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है आगे जाकर, तो अभी से ही अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आगे जाके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आप मुझसे पूछें प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है इससे, तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बहुत अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और कोई मेरे वीडियोस पावर पॉइंट पे भी हो सकती हैं, कोई इस तरह बुक की रीडिंग के साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुक की रीडिंग मुश्किल लगती है, तो मैंने आसान करने की कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।